Yes, yes, yes. I got it. I think they found them. We didn't hard I think they're started. Hello, everyone. Thank you very much to be here. And it's hard to follow Shashwati with her awesome poetry, but I'll try with my poetry and art. You saw my art with Shashwati's poetry also. So before I begin, I have a question for everybody. How many of you were born in 50s in America? Probably none. You can't see anything. That's fine. That's fine. You'll see in a second. Yeah, I was not born in 50s in America either, but I was born in 70s in India. And guess what? It's the same experience for a woman. So guess what women in India in 70s were supposed to do? This and this. There was an image of ideal Indian woman, and who you see here is my mother, and the child in her lap is me. And what was expected of me was to do what my mother did, and what her mother did, and what her mother did. But then it was me, right, that we were talking about. So I had my own will. So when I was 2-year-old, this is where I was found. And this is why. इससे पहले कि जान सकूं मैं कमजोर और कमसिन थी, भर ली थी मैंने उड़ान सीढ़ी के पार उस मुंडेर पर। वो छोटे छोटे पांव बड़ी बड़ी सीढ़ियां चढ़ गए, निडर अवाक मैं दुनिया के ऊपर और दुनिया मेरे नीचे। हाँ, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मैं कमजोर और कमसिन थी। Yep. It took about 7 or 8 people to take me down. You know, finally I'm here, I'm talking, I'm saying. Yes, I was a bubbly child and also very active. We lived in a multi-generational family with my father's 2 brothers staying with us. So I had 2 cousin brothers of my age. So if they were climbing trees, I was climbing trees. If they were jumping walls, I was jumping walls. So this was a really good time to be me at that point. But then it changed. Like it changes for every girl when she starts growing up. Yes, I'm talking about puberty. This is when a lot of it changes, and especially when I was growing up. I was being told I can do this, I cannot do this because I'm a girl. नए नए शब्दों का दरिया और दरिया में डूबती मैं, बेटी बेटी बेटी, चांद सी कोमल, फूलों सी प्यारी, परियों सी न्यारी, हाय हाय बेटी बाहर न जाओ, चांद सा रंग काला न पड़ जाए, हाय हाय बेटी कूदे न मारो, फूल सीधे न मुरझा जाए, हाय हाय इतने सवाल न पूछो, पढ़ पढ़ के आंखें न जल जाएं, चलो माँ की परछाई हो जाओ, तुम्हें भी तो कल माँ बनना होगा, बेटी इज्जत बेटी. So you can see lot of restrictions, lot of expectations, but then luckily I was going to school. School had a library, and I like to read. We're in a library right now. So in the library, I read about women like Marie Curie, Helen Keller, Nancy Drew. Those were my inspirations. And also, growing up in India, so also hearing stories of goddesses.
Anybody heard stories of goddesses? If you think about it, and this is not my joke, it is Surendra Sharma's joke, most powerful portfolio are with women goddesses. Saraswati, goddess of knowledge. We are here in her temple. We just celebrated the goddess of powers festival, right? Durga. Right? And coming up is goddess of wealth festival. So while we have dichotomy, what can I say? We worship goddesses, but we restrict our daughters. But then I was not to be restricted. I wanted to become an engineer. I studied hard and went to the best engineering college in India. Many of you, I can see, probably know IIT. I went there. And it was because if I had not been there, my parents wouldn't take me seriously and I would be in that circle of getting married, whatever. So I broke that circle. I became an engineer. I went to IIT and then I went to ISC, Masters. And this is where something else happened. That happens in every girl's life. I met the man of my dreams who's sitting here and taking pictures right now. So if you see me, I am a regular Indian girl. They say dusky complexion. I probably can't be in Hollywood or Bollywood. Well, Hollywood is far, but not even in Bollywood. But in that day and age, he could easily be in Bollywood. And he was in that school where I was. So, he was an intelligent guy. And you'll hear his poetry. He wrote poetry also. So he said, marry, and yes, I said, yes, okay. So we got married. Then what happened? I became a mother. I love my daughter. She's there. But then becoming a mother is not easy, as all mothers here know, right? Babies need food. How dare you? I was a breeze. It was a dream. You were a dream child, yes, but you still ate. So I was back into the kitchen. I was back being a mother. I was back being my own mother. Right? So I was doing things outside, but then inside I was still the same, lady. The burden of being my gender was heavily weighing on me for the first time in my life. I say first time in my life because the first time I was still able to rebel and do things, but this time the consequences were real. Earlier I had a mother. Now I had to be the mother. If I would not cook, who will take care of my daughter? If I didn't, if she was sick, I had to be there and I had to work. I had to take care of the family. The stress got me. I got a disease called fibromyalgia. So where muscles and nerves meet. So even sitting and standing down and holding a jug of water was painful. So it is at this time art came to my rescue. On advice of my doctor, I started doing art again. Even though I had a family, art was something that did, it was therapeutic. I would paint for 2 minutes and then lie down, again paint for 2 minutes and lie down. It pulled me out of depression. And I was doing whatever exercises my doctor told me more religiously, did the lifestyle changes, and I was much better. I took up a job again. And then by this time, my daughter was in high school. And one fine day, she comes and tells me she wants plastic surgery. Sorry. And this is what actually got me into looking at why she wanted that. So remember I told you my husband would be a Bollywood actor?
right? And so we all thought my daughter took after him, so she's beautiful. And she coming and telling me she wants plastic surgery was something different. So here it goes. ए दिल तेरा रंग क्या है, ए मन तेरा देश क्या है, तू कौन देश से आया और कहाँ जा बसा, तुझ बंजारे का भी एक दिन ठौर होगा, तब कोई तेरे बोल न तोलेगा, तुझे बेगाना न बोलेगा, तेरी चमड़ी न होगी गोरी न होगी काली, वो तो होगी सबसे निराली, साम्राज्यवादी सुंदरता का रंगीन चश्मा हो जाएगा गुम, तब तुम न होगी तिल्ली सी तार, तुम तो होगी तेज तलवार की धार, ए दिल तेरा रंग क्या है, ए मन तेरा देश क्या है. So I forgot to change the slides. This is about another beauty standards, like, body type. So I got into researching about women's history and why is it that women in India face problems and women in US also face problems. So when I was growing up, I had to look beautiful for marriage. Here in US, women have to look beautiful to be popular, to be considered cool. In India, we had to be married by a certain age. Here, to fit in, they have to have boyfriends. To be considered popular, they need to have boyfriends. And of course, after marriage, most women do part-time jobs after a full-time job. So this is one of the paintings which is inspired by Lucy. It's a reconstruction of a prehistoric woman who lived 200,000 years ago. So the woman in the left is actually Lucy, who lived 200,000 years ago. When you see her, what do you see? You see a strong woman, right? Now, one of the myths of patriarchy is women in the cave and man the hunter. But as most archaeologists will tell you, humankind didn't have weapons. We didn't have long-range weapons. So think about somebody who goes without any weapons and alone tries to kill a lion. And there's another person who takes out his own, all the tribe, and goes out to gather food and to find whatever scavenged food they find, like, things that were left over by carnivores. Of course, chances of survival would be more for the person who went with the tribe. This was our reality. We were actually hunters and gatherers, not hunters. We were actually gatherers and scavengers, to be more precise. And also, there was no plastic bags. So imagine one person can't take grocery for 10 people in the cave. So everybody, man, women, children, they went out, they hunted. Everybody was fit. Remember when I was 2, I was fit. I was able to go up onto the second floor windowsill. But then when puberty hit, I was told that I have to look beautiful. Muscles are ugly. I should not work out. Of course, use it or lose it. My body became weak. And then I remember that my daughter, when she was younger, also was very strong. Because मैं नहीं जानती थी कि मैं कमजोर और कमसिन थी, तो झट जाकर दूध खींच लाई अपने से दोगुना कद के बालक से. वो रोता, मैं दूध पीती. वो बोतल जो मुझे नायाब खिलौने सी लगी, बस झट जाकर यूं ही खींच लाई, जैसे हनुमान सूरज निकल गया था, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मैं कमजोर और कमसिन थी. And those who are in doubt have probably heard of Sita. And when Sita was a toddler, also there is a story of her being strong. मैं नहीं जानती थी कि मैं कमजोर और कमसिन थी, तो जिसे 4 सैनिक उठाते थे, मैंने अकेले ही उठा लिया. बस यूं ही
वो शिव का दिया, धरती माँ की गोद से उपजा शिव धनुष जो था। मगर मेरे पिता की आंखों में उल्लास नहीं, चिंता आई मुझसे बलशाली वर ढूंढने की, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मैं कमजोर और कमसिन थी। हे माँ, तू मेरी जन्मदाई, तू मेरी कोख से आई, ये काली रक्त सरिता तुझसे मुझ में समाई, ये काली रक्त सरिता तुझसे मुझ में समाई। तो क्यों तुम और मैं अशोक वाटिका में अपने कुंवर की बाट जो है, हम क्यों ना हर उस महिषासुर का वध कर दे जिसने हमारे केशों में आसमान को कैद न होने दिया। हम क्यों ना हर उस महिषासुर का वध कर दे जिसने हमारे केशों में आसमान को कैद न होने दिया। So after this realization, I worked on my marriage. Me and my husband, we fought a lot. He realized his mistakes. He realized he was being a man child, because I told I'm not good. I'm done taking care of a man child. So today our relationship looks more equal. I do what I want to do. If I want to work, I work. If I want to train for a full marathon, I train. If I want to paint, I paint. If I want to write poetry, I write poetry. And of course, my daughter is here. She is in college. I mean, she graduated college now. So our life looks much more equal. So for this second phase of life, we have worked on the real meaning of love. उन्होंने कहा प्यार चांद है, लाल गुलाब है, जेवर की दुकान है। उन्होंने कहा प्यार चांद है, लाल गुलाब है, जेवर की दुकान है। मगर सदियां लगी मुझे समझने में, प्यार है उन पंखों की परवाज जिन्होंने पहली बार खुले आसमान का स्वाद चखा है। प्यार है उन पंखों की परवाज जिन्होंने पहली बार खुले आसमान का स्वाद चखा है। So today, I want to urge you to look at the things that restrict you or your loved ones. Look deep inside and set them free. I am proud that in one generation, my mother was preparing me for marriage to be an ideal wife and mother. And now my daughter tells us that our marriage has spoiled her expectation for the man. She is not going to settle for anything less than how my husband is today. Thank you. Okay, so now we'll hear from my husband his poetry. You want lights? Yeah. Great. Wonderful. सबसे पहले तो I want to thank the library team. I feel everybody helpful in organizing this event, and Shashwati and Ms. Sujata have put it together. So I'm here, just to perform. So most of the work has been done by these guys. When I was preparing for this event, I know that you are going to have a lot of woke poetry before I come in, and I think you listen to what Shashwati decided was very woke, very modern in her way of she writes the poetry, and then Sujata's poems. So I was thinking, how should I put it together? Right? So finally, I decided that okay, fine, I am going to try to project some emotions in this session, and I refer to Navras. Right, we have got this Natya Shastra where we talk about 9 emotions. So I try to work a little bit around and see how I can map each of my poems to one of those emotions, and I'm trying to bring this to you today. 9 poems, 9 emotions, and it's my interpretation of those emotions.
So I'm going to start. That guy was me, so yeah. So I'm going to start with Karuna. Karuna is empathy. So, and for us, like sometimes I know a lot of friends have left their parents in India, and the parents, they don't get to see them for a long time. The parents want to see the grandchildren, they don't get to see them, and they're always waiting for the time when we are going to visit and meet them. So this is Karuna for them, for our elders who are there. So, Mulada Farmaiye. Yeah. Oh, Yeah. Is it better now? Yeah. Thank you so much. You can raise it more. Yeah, you can raise it higher, I think. Close to your mouth. You're a lot taller. Yeah. Or I, Wait, when it's supposed to the- be mouth. it's fine. See Make that? it straight. See that? Yeah, make it straight. It's like, yeah, twisty here, twisty here. It's fine, it's fine, it's fine. Is it okay? Yeah. This is Yeah, better. now I this is stay my here. voice. I won't move, please. Okay. So Karuna Ras. दादी हर पल दिन गिनती है, दादी हर पल दिन गिनती है, बच्चों की राहें तकती है, कितने ही सपने बुनती है, दादी हर पल दिन गिनती है। अब छुट्टी हो जाएगी तब शायद बच्चे घर आएंगे, सारे लम्हे सारे कोने दिल खुशियों से भर, सोच सोच मन मुस्काती है, आंखों से घड़ियां चुनती है, दादी हर पल दिन गिनती है। कई पुरानी तस्वीरें हैं जो यादों को महकाती हैं, ना जाने कितनी बातें जिनको भूल नहीं पाती, हर पल याद तुझे करती है, बार बार राहें तकती है, दादी हर पल दिन गिनती है। कभी फोन पे तुम आ जाओ, मुझको दिल की बात बताओ, मेरी सुनो कुछ अपनी सुनाओ, मुझसे यूं नजरें न चुराओ। और यहाँ पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा थोड़ा सा। लास्ट की पंक्तियां हैं कि मेरा जीवन एक युग सा है, मैं बीती तो युग बीते, मेरे चेहरे की झुर्रियों में तुझको अपना अक्स दिखेगा, एक जरा सा लम्हा देखो पूरी उम्र पे भारी पड़ेगा। आगे मैं गजल पेश करूंगा और रस है श्रृंगार का, रोमांस का, इससे सभी परिचित हैं, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं। तो कोई चंचल निगाहों वाला था, वाली थी, तो उसके ऊपर है, यही बैठे हम कदम है इसका शीर्षक। गजल है थोड़ी मीडियम बहर की गजल। एक निगाहे नाज की आंखों का कायल हो गया, एक निगाहे नाज की आंखों का कायल हो गया, दिल जो अपना था वो बेगानों में शामिल हो गया, दिल जो अपना था वो बेगानों में शामिल हो गया, उसने मेरा हाथ चूमा और लम्हा थम गया, उसने मेरा हाथ चूमा और लम्हा थम गया, यूं ही था मुश्किल संभलना और मुश्किल हो गया, उसके होठों की नमी ने मेरे चेहरे को छुआ, उसके होठों की नमी ने मेरे चेहरे को छुआ, जैसे एक सहरा में कोई दरिया शामिल हो गया। सहरा होता है डेजर्ट, जैसे एक सहरा में कोई दरिया शामिल हो गया। जब कहा उसने तेरी आगोश से जाता हूँ, जब कहा उसने तेरी आगोश से जाता हूँ मैं, अश्क बरसे इस तरह के दर्द बादल हो गया। ये आखिरी शेर है, इस पे थोड़ी आपकी राय चाहूंगा कि थी तलिस्माई या था कोई दुआओं का असर, थी तलिस्माई या था कोई दुआओं का असर, मरते मरते ख्वाब फिर जिंदों में शामिल हो गया, क्या बात, मरते मरते ख्वाब फिर जिंदों में शामिल हो गया, एक निगाहे नाज की आंखों का कायल हो गया। अगले इमोशंस पे जाते हैं, भय का, डर। ज्यादातर we have seen this emotion in Hindi movies or Hollywood movies with supernatural effects, right? Ghosts and spirits. But there is a fear in us when we read the news. There is a fear in us when we look at आसपास की घटनाएं जो हम देखते हैं,
हमारे अंदर एक भय तभी आता। तो इस कविता का शीर्षक है भय, यानी डर। हर आहट से डर लगता है। छोटी बहर की गजल, बहुत छोटी बहर, हिंदी की गजल। हर आहट से डर लगता है, हर कंपन से डर लगता है, जब भी मैं अखबार उठाऊं हर अक्षर से डर लगता है। सपनों से हूं सहमा सहमा, अब बिस्तर से डर लगता है। मिलकर क्या बातें करते हो, उसर उसर से डर लगता है। और इस पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि ये भी कहीं भगवान ना निकले, ये भी कहीं भगवान ना निकले, हर पत्थर से डर लगता है। वहां बहुत ईमान बिके थे, वहां बहुत ईमान बिके थे, उस मंजर से डर लगता है। आवाजों के शोर को सुनकर, आवाजों के शोर को सुनकर अब अंदर से डर लगता है। छिपे हैं सब राहों में लुटेरे, वक्त सफर से डर लगता है। और पूजा में नश्तर और पत्थर, पूजा में नश्तर और पत्थर, इस मंदिर से डर लगता है। अगला भाग है विभत्स रस, मकाबरा। एंड जैसे हम देखते हैं मूवीज में बहुत ब्लड शेड है, गोरी है, close your eyes, it's loathsome, right? But there are certain things which are so real, very close to us. We are listening about it in news every day. And they create a picture of macabre in my mind, and I'm trying to share a few lines with you. आंखों में एक मंजर, मंजर में सिर्फ खंजर। और यहाँ अब तो थोड़ा आशीर्वाद चाहूंगा कि आंखों में एक मंजर, मंजर में सिर्फ खंजर, बहकी हुई हवाएं, जलता हुआ समंदर। क्यों जल गया समंदर ये बात कौन जाने, क्यों जल गया समंदर ये बात कौन जाने, बातें सुनी सुनाई ये बातें कौन माने। जंगल दहक रहा है, जंगल दहक रहा है, इंसान दहक रहा है, चिड़ियों का एक नशेमन कब से सहक रहा है। दम तोड़ते परिंदे नीड़ों में जल रहे हैं, इस सुलगती हवा में तूफान पल रहे हैं। क्या रौद्र, हमने सुना है कि गॉड शिवा जब अपनी तीसरी आंख खोलते हैं क्रोध में आकर तो सारी दुनिया भस्म हो जाती है। उनका रौद्र अवतार, एंगर। और सूर्य जब सती जल गई थी तो उसके बाद उन्होंने पूरी कायनात को खत्म करने के लिए तीसरा नेत्र खोल दिया था, सब कुछ जला दिया था। तो हमारे अंदर भी वो एक इमोशन है गुस्से का, मगर हर वक्त वो जलाता नहीं है, कई बार वो चेंज भी लेके आता है। अगर उसको इंटरनलाइज कर लिया जाए, रेवोल्यूशनाइज कर लिया जाए, तो इट बिकम्स ए रेवोल्यूशन, इंटरनल रेवोल्यूशन, एंड चेंजेस द थिंग्स अराउंड अस। उसी रौद्र रस को मैं अपने रेवोल्यूशन के हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और संगसार का मतलब होता है पत्थरों की बात। तो जो कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, जो मजनू के ऊपर संगसार बारिश हुई थी, उसी को संगसार कहते हैं। मुलाजा फरमाइए, ये गजल है। संगसार मजनू जब दुनिया में हुआ करता है, संगसार मजनू जब दुनिया में हुआ करता है, रगे पत्थर से भी तब खून बहा, रगे पत्थर से भी तब खून बहा करता है। एक तूफान को इजाजत की गरज क्या होगी, एक तूफान को इजाजत की गरज क्या होगी। वो तो हर लम्हा हवाओं में फला करता है, वो तो हर लम्हा हवाओं में फला करता है। दूर मंजिल है मगर हौसलों का हासिल है, दूर मंजिल है मगर हौसलों का हासिल है। हमें राहों में भी एक चेहरा दिखा करता है, हमें राहों में भी एक चेहरा दिखा करता है। कोई सावन किसी सहरा पे क्या एहसान करे, कोई सावन किसी सहरा पे क्या एहसान करे, खुद वो बादल के ठहरने की दुआ करता है। और अगला शेर सुनने से पहले एक वर्ड का मतलब बताना चाहूंगा। कुव्वत, कुव्वत होता है पावर, फोर्स। जर्रा खाक मतलब कि ग्रेन ऑफ डस्ट। जर्रा खाक समझते हो भूल करते हो, जर्रा खाक समझते हो भूल करते हो,
अपनी कुव्वत को ये आंधी से बयां करता है, अपनी कुव्वत को ये आंधी से बयां करता है। संगसार मजनू जब दुनिया में हुआ करता है, रगे पत्थर से भी तब खून बहता है। खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। ये वीर रस की कविता है, सबने स्कूल में पढ़ी होगी। और वीर रस को हम एसोसिएट करते हैं कोई घोड़े पे जा रहा है तलवार निकाल के लड़ने, या फिर सीमा पे शहीद हो रहा है। मगर एक और वीर रस है जो कि आज के दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एजिटेशन करना, खड़े हो जाना। अनरीजनेबल बात अगर करती है इस्टेब्लिशमेंट, तो उसको चैलेंज करना इन अ वेरी डेमोक्रेटिक वे। और मैं उस इमोशन को, उस वीरता को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और निशाना मैं जहां लगा रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। शीर्षक से मैं जो उसका टाइटल है उससे ही आना चाहिए, नहीं तो जैसे पढ़ूंगा आ जाएगा, जैसे मैं उसके बारे में करूंगा। इसका टाइटल है मेरे मन की बात। सच को दबाने देश के अखबार आ गए, सच को दबाने देश के अखबार आ गए, टीवी भी लेके झूठ का हथियार आ गए, टीवी भी लेके झूठ का हथियार आ गए। चुप्पियों थे अब तलक है इसी बात की सजा, तो समझ हमें मुफलिस चार आ गए। जब बात चली हक की तब नाराज हो गए, हमको मिटाने हाकिमों सरकार आ गए। सींचा है खून, यहाँ पे आपको पता चलेगा निशाना कहाँ लगाया। सींचा है खून और सिर्फ भूख उगी है, सींचा है खून और सिर्फ भूख उगी है, अब लेके अर्जियां सरे दरबार आ गए। करनी है पैमाइश तेरी जंजीर की जालिम, करनी है पैमाइश तेरी जंजीर की जालिम, हम होने सरेआम गिरफ्तार आ गए, हम होने सरेआम गिरफ्तार आ गए। कुछ आस नहीं तुझसे ए हाकिम तू देखना, अब आजमाने हम तेरी तलवार आ गए, अब आजमाने हम तेरी तलवार आ गए। और इस शेर पे ये मुझे लगता है कि ऐसे आप बहुत कम लिखा गया होगा, शायद मैंने तो पढ़ा नहीं है, कि अब चल ना पाएंगे तेरे झूठ के जहाज, अब चल ना पाएंगे तेरे झूठ के जहाज, बनके तूफान कतरों के अंबार आ गए, बनके तूफान कतरों के अंबार आ गए। अब तक, यहाँ पे फिर निशाना आपको समझ में आएगा, अब तक तो हल थे तेशे थे या एक कुदाल थी, अब तक तो हल थे तेशे थे या एक कुदाल थी, तब बन के इनकलाब की हुंकार आ गए। अब खोल के रख देंगे सब मकार और फरेब, तदबीर तेरी करने तार तार आ गए। हक की लड़ाई में कोई मजहब नहीं होता, हक की लड़ाई में कोई मजहब नहीं होता, हिंदू ईसाई मुस्लिम और सरदार आ गए, हिंदू ईसाई मुस्लिम और सरदार आ गए। हर एक तिलिस्म टूटता है वक्त जब आए, हम करने आज तुझको खबरदार आ गए। मंजर को किस तरह कोई शायर करे बयां, कागज पे खुद ब खुद ही ये अशियार है। क्या बात है। शांति 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 रस, पूरी डिटैचमेंट है इस दुनिया से। है दुनिया, पता नहीं है भी कि नहीं है, शायद खा भी है, कुछ पता नहीं है। इस इमोशन को आपके सामने एक गजल के रूप में प्रेजेंट करूंगा। बहुत कुछ है मगर कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है मगर कुछ भी नहीं है, ये दुनिया है मगर कुछ भी नहीं है। जहन में ख्वाब व ख्वाहिश पल रहे हैं, जहन में ख्वाब व ख्वाहिश पल रहे हैं, ये पहलावा मगर कुछ भी नहीं। मैं जिस आखिर को भी आखिर समझ, मैं जिस आखिर को भी आखिर समझ लूं, बस ये आखिर मगर कुछ भी नहीं है। शजर, शजर होता है पेड़ और समर होता है फल। शजर है जिंदगी सुनते हैं लेकिन, शजर है जिंदगी सुनते हैं लेकिन, समर इसका मगर कुछ भी नहीं है। कोई नहकत, नहकत इज फ्रेग्रेंस, कोई नहकत है हर शय में महकती, कोई नहकत है हर शय में महकती, वजूदे शय मगर कुछ भी नहीं है। सदाए साज कब से आ रही थी, सदाए साज कब से आ रही थी,
वहां बचता मगर कुछ भी नहीं। क्या कुछ बात, भी नहीं। क्या बात। ये था शांति रस। ये पड़ाव पे आते हैं अद्भुत, वंडर, साइंस फिक्शन, फैंटेसीज, बेसिकली लेटिंग योर इमेजिनेशन गो बसर। तो मुझे गालिब का एक मिसरा है बहुत पसंद है। तो मैं पढ़ रहा था एंड आइडियाज मेरे दिमाग में, और ये बिल्कुल आजाद है, मतलब इसमें कोई गजल या नज़म कोई फॉर्मेट नहीं है। इट्स अ वेरी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ नज़म। इसमें कोई मतलब मैं बात ही कर रहा हूँ इस तरह से, तो मीटर वगैरह भी कुछ नहीं है, तो खुला है बिल्कुल इमेजिनेशन। और गालिब का एक मिसरा है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, काश तस्वीर का कोई दरवाजा होता, काश तस्वीर का कोई दरवाजा होता और हम उसमें खो जाते, काश तस्वीर का कोई दरवाजा होता और हम उसमें खो जाते, उस दरवाजे को खोलते और उसी में उसके हो जाते। पता नहीं कितने आयाम थे जिन्हें हमारे तसव्वुर छू जाते, काश तस्वीर का कोई दरवाजा होता, काश वक्त के पहरे ना होते, वक्त की कोई सीमा ना होती, जब चाहे जिस वक्त में आ जा सकते, उस वक्त के जिस इंसान से चाहे मिल सकते, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, अक्सर ये ख्याल गैब से आते। शायद ये सीमाएं, ये पहरे हमारे ही बनाए हुए, शायद हमारे तसव्वुर, हमारी सोच अभी उस उरूज तक नहीं पहुंचे कि हम इन्हें लांघ सकें, हम इनका हल्का सा एहसास करके वापस अपनी सादा जिंदगी में लौट आते हैं। गालिब को भी शायद ऐसा ही लगा होगा जब उसने ये मिसरा लिखा, आते हैं गैब से ये मकाम। हम आखिरी मंजिल पे पहुंच गए हैं और एक ही इमोशन बाकी है, हास्य। और मुझे लगा कि मैंने कभी रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारी लैंग्वेजेस को मिलाकर एक पोइम लिखी है, एक गीत लिखा है बेसिकली, और उसमें इंग्लिश भी है, थोड़ी उर्दू है, हिंदी है, थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया है, और बहुत ही मस्ती वाला स्टाइल है। और मैं गाने की भी कोशिश करूंगा, खैर गुरुजन बैठे हैं यहाँ पे, इतने बड़े सिंगर मेरे लिए तो बहुत वो हो जाएगा, मगर हाँ मैं कोशिश करता हूँ, और आपको मजा आए तो आप भी साथ में गाइएगा। तो इस कविता का नाम है मेटावर्स। तो एंजॉय करें, हास्य है, रोम कॉम है, और सब कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें आपको मजा आएगा। तेरी आंखों के मेटावर्स में एक दिन मैं खो जाऊं, मोहब्बत का जुनून ऐसा कि मैं भी तू ही हो जाऊं। तेरी आंखों के मेटावर्स में एक दिन मैं खो जाऊं, मोहब्बत का जुनून ऐसा कि मैं भी तू ही हो जाऊं। तेरी रिक्वेस्ट भी तूने नजरअंदाज कर डाली, करी जो पोस्ट मैंने उस पे भी कुछ घास ना डाली। झुलसती रेत पे एक बूंद पानी की बरस जाए, झुलसती रेत पे एक बूंद पानी की बरस जाए, अगर तू बेरुखी छोड़ो तो मैं भी शाद हो जाऊं। तेरी आंखों के मेटावर्स में एक दिन मैं खो जाऊं। मोहब्बत है मुझे लेकिन तुझे एक्सप्रेस नहीं होती, मोहब्बत है मुझे लेकिन तुझे एक्सप्रेस नहीं होती। मेरे प्रोफाइल से भी तू मगर इम्प्रेस नहीं होती। मेरे जज्बात की खुशबू अगर तुम तक पहुंच जाए, मेरे जज्बात की खुशबू अगर तुम तक पहुंच जाए, कभी तो मिल जो अपना हाल दिल में तुझको बतलाऊं। तेरी आंखों के मेटावर्स में एक दिन में खो जाऊं। और ये दो मिसरे हैं, इस पे थोड़ा आप एंजॉय कीजिएगा, इसको थोड़ा अलग है। तेरी धड़कन से मेरा सूना दिल आबाद हो जाए, तेरी धड़कन से मेरा सूना दिल आबाद हो जाए, तेरे छूने से विल्टेड रोज भी शादाब हो जाए, तेरे छूने से विल्टेड रोज भी शादाब हो जाए।
मेरे नॉट हैपनिंग गीतों पे भी फिर से निखार आए, मेरे नॉट हैपनिंग गीतों पे भी फिर से निखार आए, वहां कर रात दिन नगमों से तेरे दिल को बहलाऊं, तेरी आंखों के मेटावर्स में एक दिन मैं खो जाऊं। आखिरी इसका है, किसी सूरत तो तू मेरी मोहब्बत की ज़बान समझे, कोई दिन तो तेरा दिल मेरी खातिर जोर से धड़के, किसी सूरत तो तू मेरी मोहब्बत की ज़बान समझे, कोई दिन तो तेरा दिल मेरी खातिर जोर से धड़के, किसी डायमेंशन में अपनी आखिर बात बन जाए, किसी डायमेंशन में अपनी आखिर बात बन जाए, वहां तू मुझको मिल जाए, वहां मैं तुझको मिल जाऊं, तेरी आंखों के मेटावर्स में एक दिन मैं खो जाऊं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। एक बार फिर से तालियां। One clap for you, for yourself. So seriously, thank you so much for coming and encouraging our creativity. I like to say this a lot, but if you can search for Genius Study by NASA, go and search in Google. So they did a genius study and they found that kids, and she's an educator here, they obviously can tell better. Kids until the age of 5, 95% of them were rated as geniuses. 95%. And then it keeps dropping. Imagine a graph, probably everybody knows that, right? After 30, only 2% were rated as geniuses. So what happened? We are all born as geniuses, but then we don't stick to that. Why? It's because of the world, the education, work, everything. The difference, if you read that article, it will tell you that kids, they're not afraid of taking risks. They will tell, if they don't know something, they'll just still say something and very confident, right? But we don't do that. And that's what innovation is. That's where innovation comes from. You don't know. You're not afraid to make mistakes. That's where creativity comes in. If you ask Shashwati, you ask me, you ask Sandeep, creativity is like, air to us. We can't, stay without creativity. And we are in a creative company. I'm sure you are all also very creative, and that's why you're here to enjoy creativity. So keep this creativity alive. Keep doing what you're doing. Thank you so much. किताबें हैं, शाश्वती जी की किताब है और हमारी एक एंथोलॉजी है, Amazon पे अवेलेबल है, अगर आप उसको पिक्चर ले सकते हैं। प्रगल्भा जी ने उसको कंपाइल किया है, उनकी मेहरबानी है बहुत बहुत। Wait to order that until October 22. Just take a picture. पिक्चर लेकर। Yeah, and you can enjoy my art also if you not looked at it. Thanks for coming.